So we are reading this important book, The Five Types of Wealth. फाइव टाइप्स में से आज सेकंड टाइप हम पढ़ेंगे सोशल वेल्थ। फर्स्ट वेल्थ हमने कंप्लीट कर ली है, टाइम वेल्थ, जिसमें थ्री पिलर्स हमने देखे, अवेयरनेस, अटेंशन एंड कंट्रोल। तो सोशल वेल्थ से आज हम शुरू करेंगे। तो कौन पढ़ना चाहेगा, क्लियर एंड लाउड? हाँ जी, अल्पना जी आप पढ़ना चाहेंगे? So, two small writings, sir. ओके। Uh, थोड़ा सा enhance कर दूं. The big question: who will be sitting in the front row at your funeral? Wow, nice chapter. Who will be sitting in the front row of your at your funeral? In January 2023, Eric Newton was living a rather typical life for a man in his 40s. He and his wife Aubrey had welcomed their first child, a daughter they named Romy, 2 years earlier. She had filled their world with a joy and they had never experienced. A sensation that her arrival had completed their lives. सर मुश्किल हो रही है पढ़ना, ये इसको बड़ा कर रही हो तो फिर मुश्किल हो रही है पढ़ने में। हाँ, मोबाइल में डिफिकल्टी होती है, लैपटॉप से हाँ अच्छा सर। रहता है। हाँ सर। हाँ सर। जी, कोई इन और? हिज डॉट हाँ, जी ये विशाल। ये पैरा को खत्म कर दो थोड़ा सा। ठीक है। In his daughter's first year of life, Eric was head down, working crazy hours as chief operating officer at a Silicon Valley startup. In February 2023, he decided it was time to start something for himself and left the company to figure out what he should do next. But tragically, fate had other plans. After months of थोड़ा नहीं ऊपर नहीं, करें सर। किसी भी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद वन लाइन में शेयर करना है कि क्या समझा, क्या जिस्ट है उसका। व्हाट इज अवर टेक अवे फ्रॉम वन फर्स्ट पैराग्राफ? The kind of life we are living at the moment, are we happy and satisfied with that life? That could be the takeaway. We have to ask ourselves. If we are not, नहीं नहीं, then पर्पज what इसका should we ये do? है, जैसे कि जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन्स इन द ग्रुप एंड Hmm. एज ऑडियंस। तो देर आर पीपल हु कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल, या देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, या किसी का अटेंशन Okay. उठानी है। तो हाउ कैन यू सिंपलीफाई वट एवर यू हैव रेड इन सिंपल वर्ड्स? जैसे कि आप ये कह सकते हो, अभी तक हमने समझा कि एरिक नाम का एक बंदा है, Hmm. उसकी एक छोटी सी बच्ची है, उसके बारे में बताया। जब वो बच्ची उसकी दुनिया में आई, उसकी दुनिया पूरी कंप्लीट हो गई, उसे ऐसा लगता था। फिर उसके बाद उसने अपना एक दिन उसने अपना जॉब छोड़ दिया, वो कुछ और शुरू करना चाहता था। Hmm. तो पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, ऐसे थोड़ा सा सिंपलीफाई करके। अच्छा सर, next time बहुत I'll बहुत remember. डिटेल में You नहीं have already समझाना, said it. जस्ट वन और टू लाइंस आफ्टर ईच Hmm. पैराग्राफ, जस्ट जैसे कि एक रिफ्लेक्शन ऐड हो गया, जी। ताकि ऐसा ना लगे कि फिर तो एआई मशीन पढ़ ही लेगी। Hmm. अगर मैं एआई का इसमें रीड अलाउड लगा दूं तो वो भी पढ़ लेगा। तो व्हाट वी आर एडिंग फ्रॉम आवर साइड, तो वो लोगों को हेल्प करता है। जी वैशाली जी। आवाज आ रही है मेरी भाई जी? हाँ जी। After months of feeling exhausted and having her symptoms shrugged off by doctors who told her it was just a part of being a new mother, Orbi had finally gotten extensive blood work done. One evening, after the two had put Romy to bed and were sitting down to watch a movie, Orbi's phone rang. Doctors don't just call you at 9 p.m.
We knew something was wrong. Eric recalled of their reaction when they saw the doctor's office number on the caller ID. You need to go to ER right now, they told her. The next 24 hours were a blur of tests and fluorescent lit hospital rooms. At the end of a group of ashen-faced doctors came in and drew the curtain. Eric felt the life drain out of him. As they delivered the news, Orby had a blood cancer, a very rare form, and the prognosis wasn't good. Eric and Orby stared at the scans together in disbelief. Her whole body was covered in tumors. Her lungs, spleen, stomach, neck. I mean, it was everywhere, Eric जी recalled. हाँ, इसमें हम एक दो वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक नीरज भाई इसको थोड़ा इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। प्रोग्नोसिस क्या है, क्योंकि वो मेडिकल फील्ड से हैं कुछ कुछ, या डॉक्टर हम बता सकते हैं। एनीवन एल्स, प्रोग्नोसिस क्या होता है? एक तो होता है डायग्नोसिस और ये है प्रोग्नोसिस। डायग्नोसिस का ब्रदर देख के बताइए। कोई ऐस- बता रहा है क्या? हाँ, क्या बताया? कोई बता रहा है क्या? मतलब मैंने सर्च नहीं किया, सर्च करो So क्या? I saw one meaning on net, an opinion based on medical experience. हम्म, डॉक्टरी अनुभव के आधार पर रोग का पूर्वानुमान, पूर्व लक्षण। हम्म, डॉक्टरी अनुभव के आधार पर हम्म, a judgment about how something is likely to develop in the future. हाँ, जैसे डॉक्टर बताते हैं ना कि इनके बचने की संभावना कम है अभी, या इनके पास 2 साल का वक्त और है, ऐसे बताते हैं आगे, या इनकी बीमारी अब बढ़ती ही जाएगी, या बहुत आराम से ठीक हो जाएगी। तो ये प्रोग्नोसिस हो गया। जी वैशाली जी, आगे पढ़ते हैं। वो मेरे को बोले क्या रोल भाई? हाँ, पहले पूछा था, अगर आप कुछ ऐड करना माफ चाहें हो गया। इसमें तो। अच्छा प्रोग्नोसिस, अच्छा ठीक है, आप क्लियर कर दिए कि प्रोग्नोसिस का क्या मतलब होता है। आप कुछ इसमें ऐड करना चाहो तो कर सकते हैं। माने इसका जो प्रोग्नोसिस बोले, माने उसका जो कि भविष्य में इनका अच्छा सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इनका मेटास्टेसिस हो गया, माने ट्यूमर एक जगह से कई एक जगह फैल गया है। हम्म। लंग्स में, स्टमक में, नेक में, हर जगह ट्यूमर फैल गया है। तो बहुत पुअर प्रोग्नोसिस है हम्म। ये जी। राइट। So there is some difference in the diagnosis and the prognosis. हम्म। The diagnosis is an identification of a disease via examination. तो हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हम पाएंगे कि कोई वहाँ पे डिजीज है। और प्रोग्नोसिस जस्ट उसने अपने अनुभव के आधार पे, बिना अभी कुछ ज्यादा कोई ऐसा टेस्ट वेस्ट नहीं हुआ है, तो उसके आधार पे बोला प्रोग्नोसिस, एक अनुमान। जी, मतलब मेन इसमें बात यही है कि फ्यूचर में वो इलनेस कैसे लाइक्लीहुड है उसकी डेवलप होने की, कितना ठीक होगा या कितना फैलेगा, वो हम कह सकते हैं। जी वैशाली जी, आगे। राइट। हाँ तो With tears in his eyes, he told me the next 8 months were a roller coaster. We would bounce from hopeful with a new treatment to thinking she had days to live, and then back to hopeful. We got very good at saying goodbye to each other before she went into the operating room for whatever procedure she had to endure. By mid-fall, it नहीं was नहीं, आप clear that our इसमें जैसे जो आपने पैराग्राफ पढ़ा, जस्ट Hmm. हाफ लाइन, वन लाइन, जस्ट शेयर योर इम्प्रेशन ऑफ द पैराग्राफ कि क्या हुआ।
तो जो प्रोग्नोसिस हुआ तो उसके बाद जो कुछ हमको मतलब अनुभव होता है कि उसके बाद का जो सिचुएशन होता है वो रोलर कोस्टर राइड, मतलब कुछ कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे ऐसा। हाँ मतलब हम ये कह तो सकते हैं, देखो, जब हम ऐसे रिफ्लेक्शन शेयर कर रहे हैं तो इसमें ना तो हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, अभी कोई कहेगा कि इसका क्या पर्पज है, तो हम ट्रांसलेट नहीं कर रहे, और ना ही हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, हम जस्ट वन लाइन ऐसे ऐड करना चाह रहे हैं जैसे कि पूरे पैराग्राफ को अपने वर्ड्स में हम वन लाइन में कैसे कहेंगे, जैसे कि इसके बाद उनकी लाइफ कैसी हो गई, कभी बहुत होपफुल हो रोलर जाते थे, कभी बिल्कुल होपलेस हो जाते थे, बस काफी है इस राइट। चीज, ताकि एक कहानी सी बनती रहे और सबको समझ में आता रहे। जी। बाय मिड फॉल। by midfall, it was clear that Orby did not have long to live. On November 2nd, 23, Orby Newton passed away peacefully, surrounded by love. In the days and weeks after she left this world, Eric struggled mightily under the weight of his grief and the responsibility to stay strong for his 2.5-year-old daughter, who frequently asked, "Where is Mama?" as she processed the loss in her own way. तो जैसे इसमें आप कह सकते थे कि जैसा कि क्लियर है और जैसा कि प्रोग्नोसिस था, ऑब्री वाज नो मोर, शी पास्ड अवे। यस, सिंपल। When Eric and I spoke in December 23, he was still in the throes of grief, but he had begun to reflect on the indescribable beauty of their love and what her final days had taught him. Indescribable. तो उस सिचुएशन में उन्होंने बहुत कुछ मतलब सीखा। Orby and I fell in love early and fast, but we fell more in love during the time she was convalescing than I thought was possible. Facing death every day allowed us to set aside the silly things and focus on what matters. Our new depth made her death all the more painful, but of course, I wouldn't trade it for the world, not for anything. The privilege of knowing and loving her so deeply outpaces every other experience I have had. It's the one thing that matters. तो इसमें एक तरह से वो अपने उन क्षणों को याद कर रहा है और बता रहा है कि कितना प्यार वो उसे करता था। और इस वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं, ये थोड़ा नया सा टर्म है, कॉन्वल्स किंग। कोई बता सकता है इसका मीनिंग क्या है देख के? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। म्यूट था, मैंने बोला है 2 बार। अच्छा, हमने तो नहीं सुना। रेस्टिंग एंड रिकवरिंग हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ग्रेजुअली आफ्टर एन इलनेस। अच्छा। मतलब बीमारी के बाद जो हम थोड़ा सा रेस्ट मोड में चले जाते हैं ना, डॉक्टर बोलता है आराम करो अभी बेड पे, उस तरह से। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वैशाली जी। अरे, अच्छा, कन्वोलेशंस के बारे में हो रहा था क्या बात? हाँ अच्छा, कन्वोलेशंस वही होता है, बीमारी के बाद जो है ना, बीमारी ठीक हो गया, हाँ, उसके बाद वीकनेस जो रह जाता है, जी। तो उसको रिकवर करने के लिए जो पीरियड होता है उसी को कन्वोलेशन बोलता है। ओके ओके। गुड, नया टर्म है, मतलब पहले कभी ध्यान से इतना देखा नहीं। हाँ, ये मेडिकल टर्म है, मेडिकल।
जी कॉन्वलेसिंग कॉन्वोलेसिंग हम्म, या कन्वोलेशंस। जी ठीक है, वह चलो जी आगे कंटिन्यू करते हैं। Eric said that Orbi seemed to shift to a new level when the end grew near. Her one regret was that she hadn't spent more time deepening relationships with the people she cared about. Looked at from the other direction, her regret became an insight. The only thing that matters at all is the quality of the relationships with the people we love. हम्म तो इसने अजी से पूछा जाए तो वो कहेंगे उनको लॉस्ट कनेक्शन वाली बुक याद आ गई थोड़ी थोड़ी। तो इसमें वही बात हो रही है कि कनेक्शन हमारे लोगों से कैसे हैं, वो बहुत मैटर करता है हमारे जीवन के लिए। हम्म राइट, ठीक है, वैशाली से आगे बढ़ते हैं। एज वी स्पोक, As we spoke about our common bond as new fathers and about how he had been immersed in his job prior to Orby's diagnosis, Eric reflected on the tension between work and fatherhood. We all have obligations in life that need our attention, and those things pull us away from contemplating love with 100% of our awareness. But we must remember what's behind our desire to do those things in the first place. We must remember our center, and it's not the money. ऐसे कहते हैं ना कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, और तुम्हें मैं टाइम नहीं दे सकता क्योंकि मैं बिजी हूँ। तो ये पैराडॉक्स की तरफ इशारा है इसमें कि इतनी सारी चीज़ें लाइफ में आ जाती हैं, इतनी सारी चीज़ों को टाइम देना होता है कि जिनके लिए वो कर रहे हैं उन्हें ही टाइम नहीं दे पाते। जी Close your eyes and take 3 deep breaths. Imagine you are dead. You are at your funeral. People are walking in, crying, hugging each other. Everyone sits down. Who is sitting in the front row? Imagine their faces. These people, your front row people, are the ones who truly matter. Open your eyes and think about them. What are you doing to cherish the people who hold those special seats in your world? How are you letting those people know what they mean to you? Are you prioritizing time with them or letting it float by and disappear? हम्म हिला देने वाले क्वेश्चन है। बिल्कुल। आंखों के सामने आ रहा है सब कुछ। हम्म मेरे को तो ये लग रहा है कौन से वाले ग्रुप के लोग आएंगे। यहाँ वाले या वहाँ वाले। Oh my God! Okay. So the answer to these questions, which The group answer to about जी which group are we thinking about? मैंने कुछ और समझा पर उन्होंने कुछ और समझा। मुझे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। बाप रे। वो तो नेचुरली है, आ ही जाता है। तो सबने अपना अपना मीनिंग निकाला कि कौन कौन सा ग्रुप। तो मेरे मन में तो कुछ और था वैसे। बेसिकली The मतलब answer to the एक बी के ग्रुप एक नॉन बी के ग्रुप ऐसे कह सकते हैं। जी अच्छा ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। The answers to these questions underlie your social wealth, the depth of connection to those few important, irreplaceable people in your world. These deep, meaningful, healthy relationships with a few select individuals
will always provide a stable basis of support and love. They are the people with whom you can celebrate life's sweetness and mourn life's bitterness. Whether you are an extrovert or an introvert, a social butterfly or a hermit crab, you can and should build this foundation as the ability to call upon people for support during hard times becomes increasingly important with age. बहुत अच्छा अच्छा पैराग्राफ है, इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। और मुझे लगता है कि इस एज तक आते आते मतलब इवन 35-40 के बाद तो क्लियरली पता चल जाता है कि कौन लोग अब हैं लाइफ में, ऐसे लोग जिनके संग आपके डीप मीनिंगफुल हेल्थी रिलेशनशिप हैं, क्योंकि वो वाली एज निकल चुकी होती है जिसमें 4 दिन की चांदनी होती है। तो सोशल वेल्थ इज बिल्ट अपॉन Social wealth is built upon this foundation of depth, upon the strength of your ties to these few cherished relationships. It is expanded through breadth, connection to extended circles of friends, communities, and cultures. Finally, it is secured through earned status, a durable form of social positioning that cannot be bought. बहुत ही बढ़िया। मतलब ये 3 पिलर्स हैं, जैसे उसमें 3 पिलर्स है टाइम में AA, इसमें है DBE या DBS। जैसे डीपीएस कहते हैं, ऐसे डीबीएस कह सकते हैं। डेप्थ, ब्रेड्थ एंड स्टेटस, अर्नड स्टेटस, ये हमारी सोशल वेल्थ है। कितना सही है, मतलब सोशल वेल्थ ये है। टू बी श्योर To be sure, there are dark forces conspiring against your building this type of wealth. Over the past 30 years, technologies designed to bring us together have made us lonelier than ever before. अच्छा, इसमें मुझे एक बहुत अच्छी चीज याद आ रही है, मतलब अच्छा हुआ याद आ गया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द मूवी पेज 3? शिवाजी मैंने देखा है। एंड हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ के? बहुत ही अच्छा सॉन्ग है भाई। 2 पल मिलते कौन सा हैं, साथ मूवी? साथ चलते कौन हैं। सा मूवी सर? पेज 3। पेज 3। 2 पल चलते हैं साथ, 2 पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बचकर निकलते हैं, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ के। तो उसमें वही दिखाया है कि ना तो वहाँ डेप्थ थी ना ब्रेड्थ थी, और स्टेटस तो बड़ा ही बोरोड अजीब तरह का था वहाँ पे। मतलब लैक ऑफ सोशल वेल्थ क्या है वो उसमें विजिबल है, दिखता है। जी। वैसे कोई और पढ़ू, मतलब पढ़ रहा है क्या, मैं ही पढ़ू? थोड़ा सा रह गया, आप कंप्लीट कर लीजिए इसे। How many times have you walked down a crowded street so focused on your phone that you failed to look a single other human in the eye? How many times have you been physically surrounded by a family or friends, but still somehow distant, lost in thought about complete strangers on the latest app? How many times has an urgent text, email, or work notification pulled your mind away from the people sitting right in front of you? ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आजकल। कई बार जो लोग, ऐसे भी लोग हैं ना जो बहुत महीनों बाद सालों बाद भी मिलते हैं, भले ही मिलेंगे तो शुरू में ऐसे मिलेंगे जैसे कितने जन्म के बिछड़े हैं, 20 मिनट बाद सब अपना अपना मोबाइल देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को चाहते नहीं है लोग, लेकिन ऑब्सेस्ड हैं इतने हम, कंपल्सिव है नेचर ये, कि मोबाइल तो हमें देखना ही है, कुछ तो आया होगा। तो ये बता रहे हैं, उसकी तरफ इशारा है। जी। Technological innovations has increased your connectedness to the world around you. You have more connectedness, but you feel less connected. You need to fight back. Human connection is ultimately what provides the lasting texture and meaning in life. Without social wealth, achievement across any other arena will feel unfulfilling, even bland. Do you really picture yourself alone
on that plane or yacht? What good is the big house if there is no love to fill it? ऐसे कहते हैं ना, बड़ा मकान है या बड़ा घर है आपके पास, क्या है? पिक्चरों में दिखाते हैं ना, सब कुछ है पर अकेला आके हाँ, खाना खा रहे हैं। तो मकान तो बहुत बड़ा है पर वो घर नहीं बना, घर नहीं है, क्योंकि उसमें लोगों में प्यार नहीं है। जी, कोई The भी ऐड कर desire to सकते हैं, build a कोई भी life. बीच में कोई भी चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। जी, आप एक कंटिन्यू कीजिए। कोई ऐड कर रहा है? Okay. The desire to build a life of social wealth was what led my wife and me to move 3,000 miles across the country. We wanted to be closer to our parents. It was what led one of my readers, a woman in her mid 60s named Vicky Landis, to uproot her life and move to North Carolina to be near her 3 sons. Explaining the decision, she wrote, "The one thing I have read of yours that absolutely has changed my life is the example of how often you see your parents. How many visits are left then? Made a huge impact, and as a result, I'm moving to where my sons are." And it was what led Eric and Orby Newton, struck by a devastating blow of fate, to center their lives on love. तो जैसे आजकल ये देखा जाता है ना, जैसे स्पिरिचुअल कम्युनिटीज में क्या होता है कि जो एक फेथ को मानने वाले लोग होते हैं वो सब लोग आसपास रहते हैं। मतलब उस तरह का रियल एस्टेट डेवलप हो रहा है कि एक ही तरह के बिलीफ सिस्टम वाले लोग एक ही तरह के जगह में रहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। Even in our जी group, भाई। some people have experimented with that and more likely to do and should do. जी, Conventional wisdom says, Can you explain that further, Rahul bhai? क्या चीज, which one? That the organization, yeah, belonging to an occult या organization, that is what you're referring to, या कुछ ऐसे नहीं, जैसे the आजकल tribe? जैसे जैसे क्या हो रहा है आजकल, जैसे सपोज कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियस या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम्म मानने वाले लोग हैं बहुत सारे। लेकिन जो लोग जैसे हम्म एल्डरली एज में पहुंच जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, इस तरह की एक कम्युनिटी बनाते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद बहुत सारे लोग वहाँ पे रह सकें। अच्छा, जैसे एक आबू रोड में मतलब बन रहा है इन्फिनिटी नाम से, ओके। या एल्सवेयर, ऐसे कई जगह एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, 3-4 जगह हो रहे हैं। तो उस कम्युनिटी में क्या होता है, पूरी एक सोसाइटी है लेकिन उसमें सिर्फ उसी बिलीफ सिस्टम वाले लोग रहेंगे, मतलब वो मिलेगा ही उन लोगों को, हम्म मतलब दे कैन परचेज हम्म देयर प्रॉपर्टी ओवर देयर। अच्छा अच्छा, तो उसमें ओके, स्टूडियो अंडरस्टूड अपार्टमेंट से लेके 1 BHK 2 BHK डुप्लेक्स एवरीथिंग इज देयर। कम्युनिटी की छोटी अंडरस्टूड, छोटी हाँ है हाँ। इसमें। ओके। बैंगलोर में भी एक, जैसे मुझे पता चला था कि इस्कॉन जो कृष्णा बिलीवर्स हैं उनके लिए एक था, मतलब फैसिलिटी वेयर इट वाज गिवन ओनली टू दोज पीपल हु वर बिलीवर्स ऑफ कृष्णा या इस्कॉन फॉलोअर्स। उनके लिए वो वहाँ पे वो फ्लैट्स अवेलेबल थे, मतलब एक बड़ा सा अपार्टमेंट एरिया। सो आई, राइट। ओके, नाउ आई इसी तरह से अंडरस्टैंड। ओके, अहमदाबाद के पास है गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर करके, तो उसमें भी ये अच्छा, सेम सिस्टम है। तो ओके उसमें हमारे ग्रुप से भी 1-2 लोगों ने इसमें लिया है। ओके। तो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। हम्म, तो बेसिकली क्या, सोशल ओके, वेल्थ इंपॉर्टेंट है वहाँ, इसलिए। राइट। जी वैशाली जी। conventional wisdom says one should focus on the journey, not the destination. I disagree. Focus on the people. When you surround yourself with inspiring people, the journeys become more beautiful and the destinations become more brilliant. It's impossible to sit where you are and plan the perfect journey. Focus on the company, the people you want to travel with, and the journey will reveal itself
in due time. Nothing bad has ever come from surrounding oneself with inspiring, genuine, kind, positive, some individuals. Find your front row people, cherish them, be one to someone else. Ah, वाह, ये टर्म अच्छा कोई पूछे ना आजकल आप क्या कर रहे हो, आई एम फाइंडिंग माई फ्रंट रो पीपल और आइदर चेरिशिंग देम, ऑलरेडी फाउंड बट चेरिशिंग देम। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे से लिखा है इन्होंने। अभी कोई रिफ्लेक्शन अपना शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं क्विकली। क्या आपका टेक अवे रहा है इस चैप्टर से? आपकी फ्रंट लाइन में कौन होगा? मेरे ख्याल से फ्रंट रो से मतलब तो वैसे तो कोई भी हो सकता है, पर शायद ये रेफर ज्यादा है उनको जो अपने बिल्कुल क्लोज होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको ज्यादा रेफर किया है यहाँ पे। बिल्कुल, जो आपके ट्रू वेल विशर हैं। हाँ, ट्रू वेल विशर्स भी हो सकते हैं, और बट सीधा सीधा फैमिली मेंबर्स और ट्रू वेल विशर्स दोनों। जैसे वो LIC वाले कहते हैं ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी हाँ, जीवन आनंद पॉलिसी है वो तो। तो जीवन के बाद भी हैं साथ में। हम्म, ऐसा होता है जनरली ना। ये देखा गया है कि जैसे कोई आ, मान लिया लेडी है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो कभी कभी वो बहुत अलोन फील करती है, लोनली फील करती है, क्योंकि उसके जो रिलेटिव है ना, कभी साथ में नहीं आते बहुत सारे लोग आजकल। बट कोई कोई जो आगे निकल के आता है रिलेशन में ही ना, तो वो भी उसी श्रेणी में आता है उनके लिए। हम्म,